Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year bio students. I hope you're in good health by the grace of Allah. Welcome to lecture number 6 of our chapter 17, and today we'll be discussing about neurons and effectors. So first of all, let's start off with neurons. Neurons के बारे में हमें अपनी previous classes की information से पता है that this is the basic structural and functional unit of our central nervous system. एनिमल्स के अंदर जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर न्यूरॉन्स जो है वो फंक्शनल यूनिट होते हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने प्रीवियसली चैप्टर में देखा कि किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट इज़ नेफ्रॉन. Neurons are present in all kinds of animals, therefore it's a fundamental structure. It will be found in all animals, but in some higher animals we see there are certain cells which we call nervous cells, and they are called neuroglia. Neuroglia are the nervous cells which are present in higher animals, and they actually help न्यूरॉन्स इन देयर फंक्शनिंग इन डिफरेंट वेज. न्यूरोग्लिया की मदद से न्यूरॉन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आते हैं. न्यूरोग्लिया को हम देखते हैं कि ये क्या है. न्यूरोग्लिया आर द स्मॉल नर्वस सेल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स को अपनी फंक्शनिंग के लिए जिन न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है दोज आर प्रोवाइडेड बाय दीज सेल्स, and also these cells provide protection by an extra protective layer which is called myelin sheath. माइलिन शीथ जो है वो न्यूरॉन्स की सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है विच इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड with the help of neuroglia. So neuroglia are helping neurons in their functioning. Now let's talk about different types of neurons. By now from our previous lectures we have already established that there are three types of neurons. First type is sensory neurons, which are mostly present on our skin, and they are the receptors, and they are usually neuron endings in the form of neuron endings जो हमें skin के अंदर नज़र आ जाते हैं. Then we have associative neurons, and they're also called interneurons or relay neurons. As the name is indicating, they just relay the message or forward the impulse. So they move impulse from sensory to third category, which is motor neurons. Motor neurons are actually neurons which are going to carry the impulse to brain and from brain to the effectors. So sensory neurons ने impulse को receive करना है, relay ने उसको forward करना है, और motor ने उसको destination तक पहुंचा देना है. These are the three types of neurons. न्यूरॉन के अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. We have a neuron which consists of a cell body. सेल बॉडी के अंदर हमें न्यूक्लियस नज़र आ जाता है, और इस सेल बॉडी के अंदर से एक्सटेंड होते हुए हमें आउटग्रोथ या ब्रांचेस की फॉर्म में फाइबर्स नज़र आते हैं विच वी कॉल साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स. सो बेसिक मेन स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन इज कंसिस्टेड ऑफ सेल बॉडी, एंड इट विल कंटेन न्यूक्लियस एंड देन फाइबर्स. ये फाइबर्स कौन से हैं? साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स हमारे पास दो तरह के हमें नज़र आ जाते हैं न्यूरॉन्स में. There is one kind which are called dendrites and another kind which is called axons. Dendrites are the fibers which carry impulses towards cell body. So let's say here is a cell body, तो इस तक जो लेकर जाएंगे impulse, those are dendrites, and the fibers which carry the impulse away from a cell body are called axons. So there are two types of fibers, dendrites and axons. Let's take a look at a structure of a neuron. In this diagram you can see this region right here is the cell body, जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है. इस न्यूक्लियस के अंदर से फाइबर्स एक्सटेंड आउट हो रहे हैं. दीज फाइबर्स आर ऑफ टू काइंड, हमने अभी देखा. वी हैव एक्सॉन्स, और ऊपर जो ब्रांचेस निकल रही हैं दोज आर डेंड्राइट्स. दे विल कैरी मैसेज टूवर्ड्स सेल बॉडी, एंड एक्सॉन्स आर गोइंग टू टेक इट अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. एक्सॉन्स जो है उनके इर्द गिर्द एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर जो हमने कहा न्यूरोग्लिया की वजह से बनती है वो है माइलिन शीथ, और एक्सॉन्स एंड हो रहे हैं जिन नर्व एंडिंग्स पे ये हमें मिल जाएंगी मसल्स के अंदर. सो एक्सॉन्स आर गोइंग टू टेक मैसेज टूवर्ड्स द मसल्स. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सॉन्स. एक्सॉन्स जो है उनके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हमें उसके अंदर 2-3 किस्म की वेराइटीज़ नज़र आ सकती हैं.
एक तो वो डायग्राम होगी जो हमने अभी देखी, उसके अलावा भी हमें डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डिफरेंट फॉर्म्स देखने में मिल सकती हैं. So first of all, in the first part of this diagram A, you can see this is a neuron which has a cell body in the center. This right here is the cell body, and from it long fibers are extending towards both direction and they are almost equal in length. ऊपर वाले पार्ट में जो ब्रांचेस निकल रही हैं those are dendrites, and these branches which are moving away from axon are called away from cell body are called axons. You can notice that these dendrites have pointed ends. इनकी जो ब्रांचेस के एंड्स हैं वो पॉइंटेड हैं या वो टेपर्ड हैं. ऑन द अदर हैंड एक्सॉन्स जो हैं उनके एंड्स जो हैं वो वहाँ पर स्मॉल न्यूड्यूल्स हैं या उनके ऊपर वो उनकी एंडिंग्स जो हैं वो कवर हुई हुई हैं. सेकेंड आपको बी वाली डायग्राम में नज़र आ रहा है अनदर फॉर्म ऑफ न्यूरॉन. इस केस में द सेल बॉडी इज़ प्रेजेंट एट द टॉप. उसके अंदर से एक्सटेंड आउट हो रही हैं डेंड्राइट्स विच आर हाईली ब्रांच्ड, दे आर एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड. ये डेंड्राइट्स जो हैं वो उनके अंदर ब्रांचिंग एक्सटेंसिव नज़र आ रही है हमें, मच लाइक ट्री लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं ये डेंड्राइट्स इस न्यूरॉन को. एंड एक्सॉन जो है वो सिंगल है जो यहाँ से निकल रहा है इस सेल बॉडी के अंदर से, एंड इट इज़ क्वाइट लॉन्ग एंड दैट इज़ एंडिंग इन सम स्मॉल ब्रांचेस एट द वेरी एंड. सो एक्सॉन के अंदर लेटरल ब्रांचिंग्स नहीं है बल्कि टर्मिनल ब्रांचिंग हमें एट द एंड नज़र आ रही है. ये भी एक हमारे पास फॉर्म आ गई न्यूरॉन की. देन वी हैव अनदर फॉर्म और अनदर स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ न्यूरॉन्स which you can see in the C part of this diagram. You have a cell body which is quite larger in size. इसके अंदर से once again top side पे जो branches निकल रही हैं those are dendrites. लेकिन यहाँ पर dendrites जो हैं वो बहुत branches जो हैं उसकी थोड़ी thick हैं, वो बहुत ज़्यादा minute branches नहीं है. branches काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा pointed नहीं है. और उसी तरह से एक एक्सॉन है जो सिंगल है जो यहाँ से निकल रहा है बाहर, और एक्सॉन का जो एंड है जहाँ पर हो रहा है यानी जहाँ पर उस इन एक्सॉन की एंडिंग्स हैं, नर्व एंडिंग्स जिनको हम कह सकते हैं, वो हमें मसल्स के अंदर नज़र आ रही हैं. ये जो स्ट्रक्चर है सी पार्ट में ये हमारे पास एक मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमें पता है मोटर न्यूरॉन्स आर दोज विच आर कनेक्टेड टू द मसल्स विच टेक मैसेज टू और इम्पल्स टूवर्ड्स द मसल्स. तो ये हमारे पास एक मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आ गया. देन देयर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ न्यूरॉन स्ट्रक्चर इन द डी पार्ट. इस केस में डेंड्राइट नहीं है इस तरह के न्यूरॉन्स के पास, इंस्टेड इनके पास एक सिंगल एक्सॉन है. वो एक्सॉन मूव करता हुआ आता है सेल बॉडी की तरफ, सिंगल सेल बॉडी है, और वही एक्सॉन इस सेल बॉडी के अंदर से निकल के बाहर चला जाता है. सो देयर इज़ नॉट अ ट्रू डेंड्राइट. इंस्टेड एक्सॉन का वो वाला पार्ट जो इम्पल्स को लेकर जा रहा है सेल बॉडी की तरफ, हम उसको कह देते हैं कि ये सो कॉल्ड डेंड्रॉन है या आर्टिफिशियल डेंड्रॉन है. ट्रू डेंड्रॉन नहीं है, ये ट्रू डेंड्राइट नहीं है. और ऑन द अदर हैंड जो दूसरा पार्ट सेल बॉडी के अंदर से निकल रहा है हम उसको कह देते हैं दिस इज़ ट्रू एक्सॉन. So this structure is basically an axon which is coming towards a small cell body and then it is moving out and towards the muscles. These are the different forms of neurons. इसमें से जो D part है ये एक sensory neuron का structure है. एक sensory neuron हमें इस form में भी नज़र आ सकता है. So these are some structures of neurons. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि इन न्यूरॉन्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं. न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी वाला पार्ट है, मेन बॉडी जो है उसके अंदर हमें निसल्स ग्रैन्यूल्स नज़र आते हैं. दीज ग्रैन्यूल्स आर एक्चुअली राइबोसोम्स विच आर अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो विद गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटस. ये निसल्स ग्रैन्यूल्स जो हैं ये हमें कहाँ पे नज़र आते हैं, सेल बॉडी के अंदर. और ऑन द अदर हैंड एक्सोप्लाज्म यानी कि एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म मीन्स एक्सॉन का साइटोप्लाज्म, इट कंटेन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, फाइब्रिल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. Tubules and fibrils are going to provide strength to the exoplasm, and mitochondria and RE are for the synthesis of important substances. अगर हम जस्ट सेल बॉडी को थोड़ा सा डिटेल में देख लें कि सेल बॉडी की क्या इंपॉर्टेंस है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में.
इट इज़ द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट. दिस इज़ द पार्ट जहाँ से न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन मिलती है. इसके अलावा यहाँ पर बायोसिंथेसिस होती है ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूरॉन्स. सो सेल बॉडी का हमें इम्पॉर्टेंस यहाँ से पता चल रही है. एंड ऑल्सो इट कैन रीजेनरेट फाइबर्स, यानी कि एक सेल बॉडी के अंदर से जो फाइबर्स एक्सटेंड आउट हो रहे थे उनको ये रीजनरेट कर सकती है ये सेल बॉडी अगर उनके अंदर किसी किस्म का डैमेज हो. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द न्यूरॉन्स एंड ऑल्सो growth and maintenance substances are also synthesized by these cell bodies. Moving on, now let's talk about effectors. Effectors are the parts of our bodies, or effectors are the regions where impulses are carried towards. यानी कि ये end point होते हैं impulses के और इन्होंने कोई ना कोई response show करना होता है. Effectors receive impulse and then show a response. एनिमल्स के अंदर हमें रिसेप्टर्स इफेक्टर्स दो तरह के नज़र आते हैं. देयर आर ग्लैंड्स एंड देयर आर मसल्स. ग्लैंड्स शो secretions as a response to an impulse, and muscles show contractions in the result of a impulse which muscles reach. Muscles इफेक्टर्स के रोल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम हेल्प ले लेते हैं एक रिफ्लेक्स आर्क की. रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज़ है? इट इज़ द पाथवे ऑफ अ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन. और रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज़ है? इट्स अ टाइप ऑफ एन involuntary action. So we can say that reflex arc is the pathway of a nerve impulse during an involuntary action in animals. ये pathway जो है इसका क्या मतलब होगा कि इस involuntary action जो कि subconsciously या अपने आप जो action ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर होता हुआ हमें नज़र आता है, उसके रिज़ल्ट में रिसेप्टर्स जो कि इम्पल्स को रिसीव करते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं, और उसका जो एंड पॉइंट होता है यानी इफेक्टर्स, वो पूरा का पूरा रास्ता रिफ्लेक्स आर्क है. और अगर हम रिफ्लेक्स आर्क को स्टडी करें तो हमें नर्व इम्पल्स के पूरे पाथवे की समझ आ जाती है. राइट हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क. इस केस में हमारे पास जो रिसेप्टर साइट है वो हमारे हैंड की स्किन है, और जो हमारा इम्पल्स है या जो स्टिमुलस है वो है हीट का. एज यू कैन सी, एज सून एज आवर हैंड इज़ गोइंग टू टच द हीटेड ऑब्जेक्ट, जो कि गर्म चीज़ होगी, द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन आवर स्किन are going to receive this stimulus of heat, and they are going to forward it with the help of sensory neurons. यानी कि sensory neurons की जो endings हमारे hands के अंदर, हमारी hands की skin के अंदर हैं, वो इस impulse को पकड़ेंगी और आगे लेकर जाएंगी इस message को. This message is taken towards the brain by sensory neurons. brain के पास, brain के करीब यानी spinal cord के region में हमारे पास रिले न्यूरॉन्स हैं, यानी कि जिन्होंने मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना है. ये रिले न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स के मैसेज को रिसीव करेंगे और इसको आगे फॉरवर्ड उन्होंने कर देना है मोटर न्यूरॉन्स के पास, और मोटर न्यूरॉन्स ने जाके हमारे पास जो इफेक्टर्स हैं, विच इन दिस केस इज़ अ मसल ऑफ आवर आर्म, वहाँ तक ये लेकर जाएंगे मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन का मैसेज. और वो क्या होगा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और हम फौरी तौर पर अपना हैंड पुल कर लेंगे हीटेड ऑब्जेक्ट से. दिस इज़ एन इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी अपने आप होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. एंड हाउ इट हैपन्स, व्हाट इज़ द पाथवे ऑफ दिस और द रिफ्लेक्स आर्क ऑफ दिस process, you can see right here. So we can say that the pathway of a nerve impulse or a reflex arc is right here. सबसे पहले हमारे पास आती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स यानी कि एंडिंग्स, जिन्होंने मैसेज को, स्टिमुलस को रिसीव करना है. दे आर गोइंग टू सेंड इट टू द एसोसिएटिव और इंटर न्यूरॉन्स. दीज रिले न्यूरॉन्स आर गोइंग टू फॉरवर्ड इट टूवर्ड्स मोटर न्यूरॉन्स. और इस दौरान में ये एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो हैं ये ब्रेन के करीब हैं. ये ब्रेन या फिर, और वी कैन से दे आर क्लोजर टूवर्ड्स CNS. ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है. सो सेंसरी न्यूरॉन्स ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो मैसेज भेजा है वो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के ज़रिए से गया, और वहाँ से जो मैसेज आगे मसल्स तक पहुँचना है वो मोटर न्यूरॉन्स की मदद से हमारे मसल्स तक पहुँचता है, और हमारे मसल्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह का एक्शन परफॉर्म करके जो रिस्पॉन्स है वो शो कर देते हैं. सो दीज वर द अकाउंट्स फॉर
न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स. होपफुली आपको समझ आ गई होगी एंड देयर विल बी नो डिफ़िकल्टी फॉर यू टू लर्न दिस. Therefore, inshallah, I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.